स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वर्ल्ड अफेयर चैनल की ओर से और वीडियो का टाइटल है द मैन हु सेड हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स अबाउट इंडिया, वाज ही राइट। तो वो कौन है भाई? तो इतना हार्ट ब्रेकिंग कर दिया इंडियन वालों को, तो वीडियो देखना जरूरी है। प्रशांत धवन जी का ये वीडियो है, चैनल का नाम है वर्ल्ड अफेयर। जो मैडम ने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। लेकिन वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ली मंगर के बारे में। नाउ ये जो नाम है आज के समय हर जगह ट्रेंड कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो कई लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि RIP चार्ली। और उसके अलावा आप अगर गूगल पे एक बेसिक सर्च भी करोगे ना तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कि बिलियनियर चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इनके मेन पार्टनर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। और चार्ली मंगर अपने आप में एक बहुत ही बड़े निवेशक थे, कई लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन थे। 99 इयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें ना तो आज से कई साल पहले, करीब 6-7 साल पहले, चार्ली मंगर से पूछा गया था भारत के बारे में और उस वक्त इन्होंने बहुत सारी दिल तोड़ देने वाली बातें कही थी। नाउ ये जो वीडियो है ना जहां पे ये बात करते हैं इंडिया के बारे में, करीब 2 मिनट के आसपास की वीडियो है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस कंटेक्स्ट में यहां पर ये बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो। That's what I think of it. So I think now you turn to India, and I would say I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will move ahead, but it is so defective as a get-ahead in place. The Indians I know are fabulous people. They're just as talented as the Chinese, the Indian populace. But the system and the poverty and the corruption and the crazy democratic thing where you let anybody who screams stop all progress, it mires India with problems Lee Kuan Yew didn't have. And I don't think those Indian problems are all easy to fix. Let me give you an example. The Korean steel company, POSCO, invented a new way of creating steel out of lousy iron ore and lousy coal. There's some province in India that has lots of lousy iron ore and lots of lousy coal, which there's not much use for. And this one process would take their lousy iron ore and the coal and make a lot of steel, and they got a lot of cheap labor. So POSCO and India were made for each other. And they made a deal with this province to get together and use the POSCO know-how and the Indian lousy iron ore and lousy coal. And 8 or 9 or 10 years later, with everybody screaming and objecting and farmers lying down on the road or whatever was going on, they canceled the whole thing. In China, they just would have done it. Lee Kuan Yew would have done it in Malaysia. India is grossly defective because they've taken the worst aspects of our culture, allowing a bunch of idiots to scream and stop everything, and they copied it. And so they've taken the worst aspects of democracy, and then they forged their own chains and put them on themselves. So, no, I do not like the prospects of India compared to the prospects of and I don't think that India is going to do as well as Lee Kuan Yew. तो जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, दिल तोड़ देने वाली बातें यहाँ पे उन्होंने कही है। अगेन डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे कि आप इनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। कई इश्यूज पे उन्होंने यहाँ पर बात करी कि भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा इंडिया में ना इनके हिसाब से हम लोगों ने डेमोक्रेसी की जो अच्छी बातें हैं वो इग्नोर कर दी, जो डेमोक्रेसी की खराब बातें हैं वो इंडिया में हर जगह आपको दिखती है। ये इन्होंने बात बोली है कि इंडिया में सिस्टम ऐसा है
कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रोकना होना, कोई भी 5-6 आदमी इकट्ठा खड़े हो जाएंगे, जोर जोर से चीखेंगे और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ये ऑफ कोर्स पॉस्को स्टील प्लांट की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन्होंने समझाया कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता था, मगर सिंस भारत में लगातार प्रोटेस्ट हुए, इवेंचुअली जो ये प्रोजेक्ट है ये भारत से हटा दिया गया। और कोई चाइना जैसा देश होता, वियतनाम जैसा देश होता ना, तो ये लोग इस प्रोजेक्ट को ना छोड़ते। तो इनका ये पर्सपेक्टिव था, इनका मानना ये है कि डेमोक्रेसी से इंडिया की जो डेवलपमेंट है इसको काफ़ी लॉस हुआ है। और कई लोग हैं इंडिया में वो ये मानते हैं कि एक्चुअली चार्ली मुंगर भारत को लेकर ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक थे, निराशावादी थे, और चाइना को लेकर ये कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट थे, क्योंकि चाइना में जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी उससे इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है। चाइना में आप अगर देखो तो सोशल मीडिया में इन्हें आज याद किया जा रहा है एज ए ग्रेट इन्वेस्टर जिसने चाइना का काफ़ी फायदा किया था। यूएस में इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। तो इट डिपेंड्स नाउ, इनकी जो बातें हैं आपके पर्सपेक्टिव से क्या ठीक है या गलत है? क्योंकि अगेन देखो, मैं इस पर अपना पर्सपेक्टिव दूंगा अनफेयर है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इन्होंने ऐसी बातें कही है जिसको लेकर भारत में काफी कंट्रोवर्सी होती है कि ये ठीक है या नहीं है। तो मैं पर्सनली यहाँ पर नहीं कहूंगा कि इन्होंने जो कहा था वो सही है या नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस हजारों लोग वैसे ही कमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या आप एग्री करते हैं चार्ली मुंगर की कमेंट से, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये भारत को लेकर ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक है? आज के समय 2023-24 में अगर हम देखें तो इंडिया इज डूइंग मच बेटर, चाइना स्लो डाउन कर रहा है। लिटरली रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ने रिपोर्ट तैयार करी है और इस रिपोर्ट का नाम है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, और इसमें इन्होंने बताया है कि 2026 तक इंडिया की जीडीपी आराम से 7% तक ग्रो करती रहेगी, जबकि चाइना की जो जीडीपी है ये 3-4% के आसपास पहुंच जाएगी इन जीडीपी ग्रोथ रेट। बट स्टिल ऑब्वियसली इन द लार्ज कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइना फिर भी काफ़ी ज़रा आगे रहेगा। तो बताइएगा आपके हिसाब से चार्ली मुंगर, जिनके बारे में आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है, ही इज़ नो मोर नाउ, इनकी जो कमेंट्स थी रिगार्डिंग इंडिया आपके हिसाब से ठीक थी, नहीं थी, और आप क्यों मानते हैं कि इनकी कमेंट सही थी या नहीं थी? कुछ इसका जो रीज़न है ये भी मेंशन करिएगा। और तो चार्ली मॉर्गन जो है दोस्तों, वो वॉरेन बफेट जो थे, वॉरेन बफेट के नाम भी आपने बहुत सुना होगा। मतलब शेयर बाजार का किंग बोल लो, यूएस की बात कर रहा हूं मैं। और ये उसके राइट हैंड माने जाते थे। मतलब वॉरेन बफेट का राइट हैंड ये नहीं होते तो वॉरेन बफेट नहीं होते, वॉरेन बफेट जैसा नाम नहीं होता, ये पक्का था। दूसरी बात है कि उन्होंने जो बातें की, ये यदि कोई नॉर्मल इंसान होगा तो उसको तो ये खराब लगेगी। ये खराब भी थी, और दूसरी बात की उसके हिसाब से सही भी थी। उसके हिसाब से इसलिए सही थी क्योंकि देखो, यदि आप शेयर बाजार में होंगे या तो कहीं में भी आपने इन्वेस्ट किया, ये वो वाली बात हो गई। कोई बेटा होता है तो उसका बाप कभी बोलता है कि वो खराब है? बाप तो हमेशा, या तो उसकी माँ यही, मम्मी यही बोलेगी कि भाई मेरा बेटा क्लेवर है या होशियार है, अच्छा। सबका बेटा, जिसका भी बेटा होगा उसको वही अच्छा लगता है, ये स्वाभाविक। तो इन्होंने जो कंट्री में इन्वेस्ट उसकी ज्यादा थी उस कंट्री को अच्छा कहा। जिस कंट्री में इसमें जो कंपनी का जिक्र किया ना, उस कंपनी में भी उसका इन्वेस्ट था। ठीक है, आप हिस्ट्री जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि भारत जो है फार्मिंग कंट्री, यहाँ पे ये खेडूतों का देश है ऐसा माना जाता है। यहाँ पे भारत में जीडीपी में फार्मिंग का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। तो जो फैक्ट्रियाँ होती है उन इलाकों में लगाई जाती है, तो वो जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें नुकसान होता है। तो इस वजह से प्रोटेस्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि आप गुजरात की बात हम करेंगे तो गुजरात के अंदर एक जिला है भावनगर, उसका एक तहसील है, महुआ करके तहसील है। वहां पे जो फैक्ट्री आने वाली थी निरमा कंपनी की। ठीक है, क्योंकि कोल माइनिंग करना वहां पे चाहती, तो फार्मरों ने प्रोटेस्ट किया, तो उसको जो प्लांट है कहीं और लगवाना पड़ा। तो ये होता है जहाँ पे फार्मिंग जगह खेती लायक जमीन है, वहां पे कोई फैक्ट्री आएगी तो फार्मिंग को लॉस्ट होने ही वाला है। तो इस रीजन की वजह से भारत में प्रोटेस्ट किया जाता है, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो ये खुद, मतलब बोलते हैं ना भाई, खुद का पैसा वहां पे लगा है और चाइना की बर्बादी की बात करेगा या चाइना की इकोनॉमी की ऐसी कुछ नेगेटिव न्यूज के रिलेटेड बात करेगा तो उसका पैसा डूबने वाला है। तो ये भाई सब कुछ पैसे का खेल है, तो इसको दिल पे मत ले लेना। जो ये तो अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब तो ये अब दुनिया में भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी भी ऐसी कोई चीज होती है ना, जब बाहर का बंदा कुछ बोलता है तो उस बंदे की हिस्ट्री निकालो, उस हिस्ट्री के आधार पे फिर आप दिल पे लो दिमाग में लो, वो आपकी मर्जी है।
लेकिन पहले उसकी हिस्ट्री जाननी, वो बंदा क्या करता है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, क्या बिजनेस है, क्या कर रहा है, उसके बारे में पहले जानो फिर बोलो। और उसका जो मतलब ये उसने बयान दिया वो भी उसके रिलेटेड ही होगा। और मतलब उस समय करप्शन इंडिया में था, नो हाँ, डाउट, बहुत था था, ही ना, लेकिन करप्शन अब अभी भी नहीं गया है, अभी मतलब 100% नहीं गया है करप्शन, करप्शन कम हुआ है, लेकिन कंपैरिजन टू ये जो वीडियो है उस समय जो करप्शन था वो बहुत ही बड़ा था। तो ये तो होने ही वाला था, ये तो लोग बोलेंगे। उसने मतलब हाँ। वीडियो में मतलब उसकी जो क्लिप थी उसमें जो बात की चाइना को ही बात की, चाइना, ताइवान, हाँ चाइना को मतलब वो चाइना अच्छा है, चाइना भारत वाले अच्छे नहीं है तो भाई वहां पे उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट था, तो उसको बोलना जरूरी था। फिर अब वो तो नहीं रहे दुनिया में, तो अब तो वो जब तक थे तब तक भारत को देख लिया कि भारत क्या चीज है। और ठीक है? उसने जो मतलब बोला था अभी तो भारत में वो सब चीजें मतलब बहुत बेहतर हो गई, मतलब सब बहुत कुछ अच्छा बढ़िया, हो गया सब कुछ है। बढ़िया। बट बोलने का रीजन मेन था शेयर बाजार, हाँ। तो इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा बोलता है भाई। क्योंकि ये जब बड़े लोग बोलते हैं तो मतलब शेयरों में मतलब बहुत up बड़े down हो लोग जाता उसी है। की बात, यदि मैं तो हाँ। देखो, मैं कभी भी ऐसे बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उसकी बातें ऐसी जो इकोनॉमिकली रिलेटेड बात करते हैं ना, तब मैं ज्यादातर उसको इग्नोर करता हूँ। उसका रीजन यही होता है, ठीक है, जो भी मैंने ज्यादातर देखा है, जो भी कोई बिजनेसमैन बात करेंगे ना, वो उसी कंपनी की अच्छी बात हाँ। करेगा जहां पे उसका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो, हाँ। ठीक है। यही तो बात होती है ना, यही तो गेम है सारा बिजनेस का। बट पहले रिसर्च करने के बाद दिल पे लेना दोस्तों। मैं तो कभी ऐसी बातें दिल पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास भी वॉरेन बफेट जैसे भी लोग थे, राकेश झुनझुनवाला, फिलहाल वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। तभी ये लोग सब कुछ बोलने वाले जो थे, अब सबके मुंह जो है उसके ऊपर पट्टी लग चुकी है। भारत क्या कर सकता है वो सबको अब पता है, लेकिन फिर भी एक बार और बोलता हूँ, दिल पे मत लेना इस वीडियो को, इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि रीजन यही है जो मैंने बताया, यही आप रिसर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। उन्होंने बोला, उसका काम था बोलने का, जो बोला भले बोला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजन उसके पीछे क्या था बोलने का, वो रीजन आपको 100% मिल जाएगा। वॉरेन बफेट की स्टोरी जो है, वो स्टोरी भी एक बार पढ़ लेना। मैंने स्टोरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने जो ऐसे वीडियो देख के मेरे को जो नॉलेज है, वॉरेन बफेट का जो नाम तो बहुत सालों से मेरे को पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेड हम भी ले लेते हैं, इसलिए तो उसका ध्यान होना, जिक्र होना जरूरी बनता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिलहाल यही विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।